Assalamu alaikum everyone. Let's start October, November 2019, variance 12. Question number 1. The diagram shows a Boltzmann distribution of the energies of gaseous molecules and the activation energy of a reaction with and without a catalyst. Okay. Which statement about this distribution curve is correct? Option A. If the temperature of the gas is increased, the maximum of the curve becomes higher. No, it is wrong, because if temperature of the gas is increased, the curve maximum shifts to the right hand side, and this curve becomes flattened like this. Like this. All right, the first statement is wrong. Option A is wrong. Second, if the temperature of the gas is increased, the maximum of the curve moves to the left. That's again wrong, because जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कर्व जो है वो फ्लैटन होता है और वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड लाइक दिस. So B statement is also wrong. C, the fraction of molecule that reacts in the presence of a catalyst is shown by this. No, this is also wrong, because जब आप कैटलिस्ट के साथ शेयर करते हो तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये इन्वॉल्व हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए. नॉट जस्ट दिस, द एंटायर थिंग. ऑलराइट, नॉट जस्ट थिंग, द एंटायर फ्रैक्शन टिल हियर, ये पूरा फ्रैक्शन कंसिडर किया जाएगा. तो ये भी रॉन्ग है, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज डी. Question number 2. In this question, it should be assumed that this salt dissolves in water without causing an increase in volume. Okay. Look at which mass of ammonium carbonate should be added to 800 cm cube of water to form 0.1 mole per dm solution of ammonium ions. So first of all, take out the number of moles of ammonium ions. तो ये हो जाएगा आपके पास 800 into 0.1 divided by 1000. तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास I believe 0.08 moles. आप जानते हैं कि जो सॉल्ट है आपके पास उसमें 2 अमोनियम आयंस हैं. The ratio between salt and an ammonium ion according to the equation is going to be like 1:2 का रेशियो. अगर आपने 0.08 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ अमोनियम कार्बोनेट यानी मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.04 moles. Right? We need to find out the mass of salt. I mean, we need to find out the moles of ammonium carbonate. तो मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट को डिटरमिन करने के लिए, यानी मास ऑफ सॉल्ट को डिटरमिन करने के लिए मैं मोल्स यूज करूंगा, which is 0.04. MR of ammonium carbonate is going to be 114. So बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 4.56 ग्राम. ठीक है. So 4.56 gram is basically the A is going to be the right answer. ठीक है. Question number 3. The graph shows the successive ionization energies of element X and element Y. Element X है आपके पास, element Y है. Element X को हमने dotted line से represent किया, element Y को हमने solid line से represent किया है. Both elements are in period 3 of the periodic table. Okay. Which statement is correct? इससे पहले कि हम स्टेटमेंट की तरफ जाएं, जरा देख लेते हैं एक नजर. देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप जो है ना, वो इन दोनों के दरमियान है, यानी बिटवीन 5th and 6th. राइट, यहाँ एनर्जी का गैप आ गया है.
एनर्जी गैप है हाईएस्ट, शेल चेंज हो गया यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शेल, which means element belongs to group 5 of the periodic table, ठीक है जी। तो हम यहां से कह देंगे 5 electrons are removed from valence shell तो element belongs to group 15 of the periodic table, और ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं वो -3 चार्ज कैरी करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। दिस इज फॉर एलिमेंट y, ठीक है जी। ये एलिमेंट y से रिलेटेड डिस्कशन थी, ये एलिमेंट y है मेरे पास और ये एलिमेंट x है मेरे पास। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप इन दोनों के दरमियान है, इसका मतलब शेल चेंज हो गया। अगर शेल चेंज हो गया है तो इसका मतलब फर्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब belongs to group 17 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, which is why they carries -1 चार्ज। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन मैंने इस ग्राफ से डिटरमाइन की। अब हम ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। An atom of element X needs 1 extra electron for a full outer shell, ठीक है जी। An atom of Y needs 3 extra electrons for a full outer shell, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए X को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, और एलिमेंट Y को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जब तो उसके ऊपर -3 चार्ज आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सीम्स टू बी राइट, and therefore A is going to be the right answer. हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। An atom of element Y has 5 electrons in the 3p orbital. Wrong. एलिमेंट Y जो है उसके वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो s ऑर्बिटल में 2 होंगे, p में 3 होंगे, तो इसका मतलब p जो है उसमें 5 नहीं आ सकते, राइट। p में 3 होंगे, तो इसलिए गलत हो गया। एलिमेंट X has an oxidation number of +7 in most of its compounds. Wrong, because सोडियम क्लोराइड में -1 भी होती है, सोडियम क्लोराइड 1 में +1 भी होती है। When element X combines with element Y, the bonding is ionic. It is also wrong because दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और दो नॉन मेटल्स मिलकर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते। Which statement about the electrons in a ground state carbon atom is correct? Electrons are present in 4 different energy levels. If we talk about electrons are present in 4 different energy levels, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स ही 2 होते हैं, ठीक है। अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2, सही है कि 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये तो सेम एनर्जी लेवल है ना। ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, तो सिर्फ 2 शेल्स हैं तो 2 एनर्जी लेवल्स हो गए, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स देन देयर आर इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं वो द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी इज स्फेरिकल। नहीं जी, हाईएस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो p है एंड p हैज अ डंबल शेप, स्फेरिकल नहीं हो सकता, इसलिए c भी गलत। जब a गलत, b गलत, c गलत, तो करेक्ट ऑप्शन इज d, और d पढ़ लेते हैं। तो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज स्फेरिकल, बिल्कुल सही बात है। s ऑर्बिटल की एनर्जी p से कम होती है और इसकी स्फेरिकल शेप होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
In this question, you should assume the vapor behaves as an ideal gas. 0.175 gram of volatile liquid produces a vapor of volume this at 100 degrees Celsius and a pressure this. What is the MR of the liquid? Guys, मैंने आपको ideal gas equation समझाई थी और मैंने कहा था कि अगर आपको MR कैलकुलेट करना हो तो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से कर लेते हैं, MRT अपॉन PV। अब मुझे मास मालूम है 0.175, ठीक है। R की वैल्यू गिवन इन द डेटा बुकलेट 8.31 इंटू टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करूंगा बेटा, तो मेरे पास आंसर आएगा 373। प्रेशर आपके पास है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम आपके पास 4.50 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब है, क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसलिए आप उसकी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से MR की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 119। तो 119 इज बेसिकली C। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो आप जानते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये रॉन्ग हो गया। आप नोट करें यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। आप नोट करें यहाँ पर कंबशन हो रही है, ये भी एक्सोथर्मिक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक्सोथर्मिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका राइट आंसर होगा बिकॉज ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, एंड थर्मल डिकम्पोजिशन हमेशा क्या होती है? एंडोथर्मिक। ठीक है। Which equation correctly represents the standard enthalpy change of atomization of the given element? Atomization is always applicable for 1 mole of gaseous atom. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैशियस एटम यहां बनाए, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम यहां बनाए, ओके, ठीक है। तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर बी है। ये गलत, क्योंकि ये 2 मोल के लिए आ गया, विच इज रॉन्ग। और ये आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत। तो ये गलत बिकॉज फॉर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज बी, ये भी गलत, बिकॉज एट RTP आयोडीन इज सॉलिड, और उन्होंने यहाँ पर आयोडीन गैस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड, which element is oxidized and which element is reduced? ठीक है, यहां पर क्रोमियम 14 7 प्लस, यहां पर क्रोमियम जो है ना वो रिड्यूस, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो नाइट्रोजन इज बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और क्रोमियम जो है वो यहाँ पर +6 है, सॉरी +4 है। ये हो जाएगा 2x -2 times 3, molecule is neutral, which is y equals to 0, then 2x equals to 6, then x equals to +3। तो यहाँ पर +3 है। और अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर क्या होगा? अमोनियम आयन हैज 2+ चार्ज, तो ये हो जाएगा 2x + 2 - 2 times 7 equals to 0, then 2x equals to 14 +12 और ये हो जाएगा +6, ठीक है। सो क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड बेसिकली, तो राइट आंसर इज सी। When lead 2 sulfide is heated in air, sulfur dioxide and lead 2 oxide are formed. What is the equation for the reaction between PBS and oxygen? तो बेटा जब आप PBS ले रहे हैं और आप उसको एयर में हीट कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है PbO में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। इक्वेशन देखते हैं।
यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई आपके पास 3, तो मैं यहाँ पर 1.5 कर देता हूँ। तो सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, लेड बैलेंस, आप देख लीजिए ये इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, गलत हो गया। यहाँ पर 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर गिवन है, which is why A is the right answer. Oh, sorry, C is the right answer. Question number 15. The decomposition of sulfur trioxide is a dynamic equilibrium. ये dynamic equilibrium है। वो कह रहे हैं what happened when the pressure of the system is increased. आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 moles हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 moles हैं, और हम जानते हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा उसके अगेंस्ट वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी इक्विलिब्रियम shift towards less number of moles, because less number of moles is basically less volume. तो less number of moles कहाँ पर हैं? less number of moles आपके पास रिएक्टेंट साइड पे, तो इसका मतलब प्रेशर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड जाना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जाना चाहिए। तो प्रेशर को जब आप इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा, बट इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। रॉन्ग, प्रेशर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। अगेन ये भी रॉन्ग, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, दैट्स राइट, एंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। द राइट आंसर इज सी। फिर उसके बाद है आपके पास hydrated aluminum ions undergoes the following reaction. By the way, we have done this equation in the class during the theory section. Which statement about this reaction is correct? Water and this complex are a conjugate acid-base pair. No, conjugate acid-base pair नहीं है, acid-base हो सकते हैं. This is acid, this is base. तो conjugate नहीं है. H2 is acting as an acid as it is donating hydrogen ion. No, it is accepting hydrogen ion क्योंकि वो H3O plus में खत्म convert हो रहा है, तो ये भी गलत. If OH negative ion is added, the equilibrium will move towards right. बिल्कुल सही बात है, because आप नोट करें जब आप इस सिस्टम के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड करेंगे तो सिस्टम में मौजूद H3O plus आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus ions decreases, so equilibrium will move towards right hand side. ठीक है, तो C is going to be the right answer. Question number 12. Which diagram correctly shows the electron negativity of the elements plotted against their first ionization energy? आप सब जानते हैं कि across the period ionization energy increases, तो ionization energy सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा जो है वो मैग्नीशियम की होगी, और मैग्नीशियम से जो कम है वो एल्यूमिनियम की होगी, और एल्यूमिनियम से जो कम है वो सोडियम की होगी। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि सबसे कम सोडियम की होनी चाहिए, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की होनी चाहिए, मैग्नीशियम से कम जो है वो एल्यूमिनियम की होगी, और सिलिकॉन की ज्यादा होगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का तो ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लेते हैं। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका मतलब सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी चाहिए, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उससे ज्यादा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा। ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा हो गई, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों फैक्टर जो है ना वो बी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज वाई बी इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अक्रॉस द पीरियड
ionization energy increases and electron negativity value also increases. ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज आपको डेटा शेयर भी किया हुआ है, पीरियड 2 का भी शेयर किया हुआ है, पीरियड 3 का भी, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और एक बात और, अगर आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के 2 स्केचेस करवाए थे मैंने पीरियड 2 पीरियड 3 के लिए, अगर वो याद हो तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और इसकी रीजन मैंने ये दी थी कि एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p ऑर्बिटल से रिमूव होता है, व्हिच इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू द 3s ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीशियम, इफ यू रिमेंबर दीज एक्सप्लेनेशंस। Question number 13. Which statement about the compounds of group 2 elements, magnesium to barium, is correct? Carbonates of group 2 elements produces bubbles when added to dilute sulfuric acid. ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन करेगा एसिड से तो एफरवेसेंस या बबल्स ऑफ गैस रिलीज होंगे। तो राइट आंसर इज ए। नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन। रॉन्ग, नाइट्रोजन नहीं प्रोड्यूस करता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस बबल। रॉन्ग, ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, कोई बबल्स नहीं रिलीज होते। और ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो एम्फोटेरिक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, वो कहना है व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ saturated solution of barium hydroxide and calcium hydroxide are mixed, a white precipitates Y forms. ठीक है, अब देखें दो चीजें हैं आपके पास। पहली बात ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी बात ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं ये इनसॉल्युबल होता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड और ये सॉल्युबल होता है। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को हम Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या मिल रहा होगा आपको? फिल्ट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं द मिक्सचर इज फिल्टर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू द फिल्ट्रेट प्रोड्यूसिंग अ सेकंड व्हाइट प्रेसिपिटेट Z। तो अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करूं तो इट विल टर्न टू बेरियम कार्बोनेट एंड वाटर। और बेरियम कार्बोनेट की क्या मिलेंगे आपको? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, जिसको मैं और एग्जामिनर मिलकर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z से। तो Z जो है वो बेरियम कार्बोनेट होना चाहिए, तो बेरियम कार्बोनेट सिर्फ ऑप्शन सी में है। और Y जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है बेटे। फिर आपके पास है chlorate 5 ions are produced in a redox reaction between chlorine and hot aqueous sodium hydroxide। क्या देखें, क्लोरीन और हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोरेट 1 बनता है और वाटर बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी यूज्ड टू हेल्प बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द वैल्यूज ऑफ V, X एंड Y इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए, हमने आपको ये लिखवाई है इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास 3Cl2 प्लस 6 हाइड्रोक्साइड आयंस, 5 chloride ions plus ClO3 negative ions plus 3H2। मैंने इसकी मोलेकुलर इक्वेशन भी शेयर की थी आपके साथ और इसकी आयनिक इक्वेशन भी शेयर की हुई है, तो आई बिलीव आपको ये चीजें पता होंगी। तो V क्या है यहाँ से? V आपके पास है बेटा 3। ठीक है, V3 कहाँ पर है? ये रहा। फिर आपके पास X आपके पास क्या है? 5, X5 ये रहा। और फिर आपके पास क्या है? Y जो है वो आपके पास 1 है, ये 1 है, तो राइट आंसर इज C। The properties of chlorine, bromine and their compounds are compared. Which property is smaller for chlorine than for bromine? Okay, वो कह रहे हैं आपसे
बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स बॉन्ड, बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ज्यादा हो गई, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, वो कह रहे हैं स्मॉलर होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की ज्यादा होती है, ब्रोमीन की कम होती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स इन अमोनिया, क्लोरीन की ज्यादा होती है, वो आपसे स्मॉलर पूछ रहा है, तो ये भी गलत। सिल्वर क्लोराइड इज मोर soluble than silver bromide. तो राइट आंसर इज डी। क्लोरीन की जो वैन वॉल फोर्सेस हैं वो ऑब्वियसली वीकर होंगी एज कंपेयर टू ब्रोमीन, बिकॉज क्लोरीन हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वैन वॉल फोर्सेस भी उतनी ही कम होती हैं, राइट। फिर वो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में, solid sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid. आप जानते हैं इसमें iodide ions will serve as a stronger reducing agent, while concentrated sulfuric acid will serve as an oxidizing agent to form more than one product that contains sulfur. What is the lowest oxidation number of sulfur in these products? आप जानते हैं कि आपको आयोडीन मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, H2S मिलता है और सल्फर भी मिलता है। तो सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट में सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो H2S में सल्फर की है, which is -2, and therefore A is going to be the right answer. Question number 18. Which emission from an internal combustion engine contributes to erosion of marble statues? तो मार्बल स्टैचूज जाहिर सी बात है आपकी एसिडिक गैस होगी, क्योंकि वो एसिड रेन कॉज करेगी, और एसिड रेन कौन सी गैस कॉज करती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन तो पोल्यूटेंट ही नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये मार्बल स्टैचूज को कोरोड नहीं करता। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, which statement about this reaction is correct? It is a redox reaction, not at all, because अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, और इन दोनों को रिएक्शन करके हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अमोनियम कार्बोनेट में। ठीक है जी, राइट। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन अमोनिया इज -3, whereas नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन अमोनिया माइन इज आल्सो -3, which means ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। फिर वो क्या कह रहे हैं? इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन। दैट्स राइट, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि जब भी अमोनिया माइंस फॉर्म होंगे इसका मतलब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज किया होगा, और जब भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करता है वो एज अ बेस बिहेव करता है। ये ट्रिक समझाई थी मैंने आपको आंसर तक पहुंचने की, राइट। सो मैंने उसको अप्लाई करके बी डिटरमिन कर लिया। आगे भी पढ़ लेते हैं। द H bond angle decreases as a consequence of this reaction. Wrong, because यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और अमोनिया माइन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा, और बेटा कार्बोनेट आयंस में 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। वो कह रहे हैं द थ्री सब्सटेंसेस रिएक्ट इन अ 1:1 रेशियो इन दिस रिएक्शन, नॉट, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल 1 मोल 1 मोल का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर वो आपसे कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म should be considered when answering this question. How many isomers with the formula C5H10 have structures that involves pi bonding? Okay, C5H10. C5H10. मैं ट्राई करता हूँ बेटा इसी जगह पर, I'll try my level best.
पाई बॉन्ड रखना है मैंने, ठीक है। तो दिस वन इज फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। ये पेंटवानीन हो गया आपका। अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को अगर चेंज कर लूं तो वो चेन पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा, राइट। ये पेंटुइन हो गया। और आप जानते हैं कि मुझे यहां से सिस भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, यानी ये सिस पेंटुइन भी है, ये ट्रांस पेंटुइन भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं यहाँ एक अल्काइल ब्रांच अटैच कर दूं, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 4, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। CH3 CH2 CH3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटवनीन। इसके बाद एक और कर लेते हैं हम, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 anything left? तो ये हो गया आपका पेंटवनीन, ये हो गया सिस पेंटुइन ट्रांस पेंटुइन, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, और ये हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल ब्यूटवनीन। ओके, तो अब हम इससे एक बना लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 एंड देन CH3, ठीक है। यानी ये वाली CH3 उठाकर मैंने इस कार्बन एटम पे शिफ्ट किया, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे लाया, ये आइसोमर आ गया। ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी, आई बिलीव, डी। फिर वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ फिनएजाइन। वो कह रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ फिनएजाइन बताइए क्या होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ फिनएजाइन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। नाइट्रोजन आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास C6H4N, हाफ कर दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। राइट आंसर इज ए। तो वो कह रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X reacts with hot concentrated acidified potassium magnate 7 solution to give a single carbon organic product। वो कह रहे हैं सिंगल कार्बन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट बननी चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। तो यहां से प्रोपेनॉन बनेगा बिकॉज डबल बॉन्ड के साथ C है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनी, दो बनी है। ये ब्यूटुइन है, अगर मैं इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ
इथेनॉइक एसिड बनेगा, दैट इज द ओनली प्रोडक्ट। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, यहां से आपको प्रोपोनिक एसिड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो अगेन दो प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, आई मीन दो डिफरेंट, और ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा बिकॉज एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आई बिलीव 22 का बी होना चाहिए। 23, 1 chloro 2 methyl butane reacts with sodium cyanide in ethanol in a nucleophilic substitution reaction. Guys, ये एक अल्काइलाइड है, इसको हम सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं इन इथेनॉल व्हिच विल सर्व एज अ सॉल्वेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट इन दिस? तो क्योंकि आपके पास ये अल्काइलाइड है तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई ये अल्काइलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ब्यूटेन कह रहे हैं तो 4 कार्बन एटम्स ले लिया, 1 क्लोरो कह रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन, 2 मिथाइल कह रहे हैं तो सेकंड कार्बन के ऊपर CH3। अब आप नोट कर सकते हैं कि ये एक प्राइमरी अल्काइलाइड है, एंड प्राइमरी अल्काइलाइड ऑलवेज अंडरगोस SN2 mechanism in which pentavalent transition state is formed with an overall charge of minus. तो pentavalent transition state around carbon atom होनी चाहिए। यहाँ पर pentavalent transition state है around carbon atom with a charge of negative। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कुछ ज्यादा ही बता दिए, which is wrong। सही है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा ही बता दिए, which is wrong। मतलब कह लीजिए कि मैं अगर इस कंपाउंड को इस तरह से लिखूं, इसकी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना के दूं आपको, तो वो ये बनेगी CH2 Cl। सही है, और ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH3, और बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइनाइड। ये आपकी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। अब आप चेक कीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है, तो CH3 CH2 CH CH3, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, प्रोपेन 1 mole can be reacted with acidified potassium dichromate 6। प्रोपेन 1 mole is a primary alcohol, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोपेनिक एसिड बन रहा है इन रिएक्शन 1, प्रोपेनॉल बन रहा है इन रिएक्शन 2। वो कह रहे हैं हाउ कैन द रिएक्शन बी कैरिड आउट टू इंश्योर दैट रिएक्शन 2 अकर्स रादर देन रिएक्शन 1। अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन मिक्सचर होगा, उसको फौरी तौर पे डिस्टिल कर लीजिए। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द थ्योरी क्लासेस, राइट? कि पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर आपने उस मिक्सचर में से एल्डिहाइड को रिकवर करना है तो आप उसको डिस्टिल करोगे। तो चेक करें डिस्टिलेशन की टर्म कहां पर है, सी में है, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑलराइट, फिर उसके बाद है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। बेटा सबसे पहली तो बात ये कि आप मिथेनॉल की जो कंबशन है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, which is CH3OH। अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। तो जाहिर सी बात है 4 ऑक्सीजन करने के लिए मैं यहाँ पर 3/2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि 3 ये हो जाएंगे, 1 ये है, 4 ऑक्सीजन। अब आपके पास 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द MR ऑफ मिथेनॉल, और उसके थ्रू फिर मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालिए। तो मेरे पास 40 है, उसको डिवाइड कर दीजिए मिथेनॉल के MR से। तो बेटा मिथेनॉल का जो MR है आपके पास वो एक्चुअली आपके पास है, ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, 15 + 17, 15 + 17 इज गोइंग टू बी 32। तो अगर मैं 40 को डिवाइड कर दूं 32 से, सो मेरे पास आंसर आएगा 1.25। ये 1 मोल है और ये 1.5 मोल है।
अगर आपने 1.25 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताइए इसके कितने होंगे। तो 1.25 इंटू 1.5 इट्स गोइंग टू बी 1.875 मोल्स। अब आप चेक कीजिए ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। 1.875 का मतलब 1.88, राइट आंसर इज ए। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 26। वो आपसे कह रहे हैं कंपाउंड X हैज स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब आइदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अगर ऑप्टिकल है तो फिर आपको कायरल कार्बन देखनी होगी। फिर वो कह रहे हैं फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म विद फैलिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये एल्डिहाइड होगा, मस्ट बी एन एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन तो देते नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि कीटोन है, और ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि कीटोन है, राइट। अब मसला ये है कि स्टीरियो आइसोमर्स देखते हैं। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ दो सिमिलर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और मैंने रीजन क्या दी कि दोनों सिमिलर ग्रुप एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिकॉज दिस कार्बन इज काइरल कार्बन। तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक है बेटे। 26 के बाद आपके पास है 27। वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ Y. Y is basically diketone because we have two ketone functional groups in this molecule. Two suggestions are made about Y. Y can be oxidized by hot acidified dichromate 6 ions. तो आप जानते हैं कि कीटोन नेवर ऑक्सीडाइज। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं 1 mole of Y gives 1 mole of triiodomethane when it reacts with an excess of alkaline icoside. तो गाइस आप नोट करें, एक मिनट आप नोट करें, ये CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा है और ये CH3CO ग्रुप भी एक साथ लिखा है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से जब आइडोफॉर्म का टेस्ट बनेगा तो वो आएगा CHI3, क्योंकि ये कार्बन CHI3 में कन्वर्ट होगी, ये कार्बन भी CHI3 में कन्वर्ट होगी। तो टोटल आपके पास 2 मोल्स ऑफ CHI3 बनेंगे। वो कह रहे हैं gives 1 mole of triiodomethane, which is absolutely wrong. तो इसका मतलब आंसर इज डी, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। ठीक है। Esters can be prepared by the reaction of a carboxylic acid with an alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. All right. Which rope gives the correct names of the reagent that would be suitable to prepare the ester Z? पहली तो बात ये कि आप एस्टर का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अल्कोहल का है और ये पूरा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो ये कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है? 1 2 3 4 कार्बन का। इसका मतलब ये ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा वाटर का OH हासिल करके। और ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओल ऑक्स वाटर का हाइड्रोजन हासिल करके। तो प्रोपेन 2 ओल कहाँ लिखा हुआ है? सी में। और ब्यूटानोइक एसिड कहाँ लिखा हुआ है? सी में। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question 29. Compound Q can be hydrolyzed by HCl. Okay, this might be an ester because acid hydrolysis होती है ester की। ठीक है। The two products of this hydrolysis are the same empirical formula. What could Q be? Okay. So भाई सेम empirical formula कह रहे हैं वो आपसे। तो सेम empirical formula देखिए, तो 1 by 1 करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा CH3CO2H। मैं देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एसिड का पार्ट है और ये अल्कोहल का पार्ट है। तो ये अल्कोहल आ जाएगा आपके पास CH2OH और ये OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है।
अब यार एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो ये आपके पास है C2H4O2 और ये होना चाहिए C2H6O2। तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये बनेगा CH2O, और अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये करेगा CH3O। इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया क्योंकि डिफरेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला है। नॉट सेम, यू नॉट सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। यू शुड हैव एन आइडिया कि यार ये एस्टर है तो ये इथेनोइक एसिड बनेगा और ये अल्कोहल बन रहा होगा, डायोल बनेगा। अब देखिए ये इथेनोइक एसिड बनेगा यहाँ से, और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड और OH दोनों आ जाएंगे ऑप्शन बी से। तो चलें देखते हैं, हाइड्रोलिसिस करी तो ये बनेगा CH3COOH प्लस ये बन जाएगा CH2OH, फिर आ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा COOH। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, बिकॉज आपके पास MCQ करने के लिए 1 मिनट ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये एज इट इज, और ये ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन हासिल करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CH3 एज इट इज CO है, ये वाटर का OH हासिल करके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाट, ये मेरे दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, जो कि आपको 1 मिनट में MCQ करने के लिए सोचना होगा, राइट। इसका हाफ करेंगे आप, इसका अगर हाफ करेंगे तो वो बनेगा CH2O। इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। वन टू थ्री कार्बन एटम्स हैं, 2 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन एटम है। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा CH2O। तो ये देखें, ये दोनों के दोनों सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गए, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, C2H4O2 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 30, substance T was analyzed and found to contain 62.07% carbon, 10.34% hydrogen and 27.59% oxygen. Okay, which substance could T be? तो बेटा पहली तो बात ये है कि आपके पास एक पीक ये है और दूसरी पीक ये है। ये वाली जो पीक है ये अल्कोहल की है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये वाली जो पीक है ये CH की है विच इज 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई पीक अवेलेबल नहीं है। सी भी गलत हो गया क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि कीटोन की कोई पीक अवेलेबल नहीं है, कार्बोनाइल की कोई पीक अवेलेबल नहीं है। तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर डी है, सही है। तो डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना भी है, ओके। तो हम पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेटा कार्बन मेरे पास कितना है 62.07, हाइड्रोजन मेरे पास 10.34 है, और ऑक्सीजन बेटा मेरे पास है 27.59। आई होप यही वैल्यूज हो जी, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.1725। यहाँ पर हो जाएगा 10.34 और यहाँ पर हो जाएगा 1.7243। तो 1.7243 से मैं तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर दूंगा इन ऑर्डर टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा आपके पास 1। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, C3H6O। दिस इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने नजर आ रहे हैं आपको? 6। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं आपको? 12। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा यानी हाफ करूंगा तो एम्पेरिकल बनेगा C3H6O। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअली टैली हो रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया एम्पेरिकल फॉर्मूला से, व्हिच मींस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है ना वो टैली नहीं होगा फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। वो कह रहे हैं आपसे विच गैसियस मॉलिक्यूल आर पोलर। तो अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है, पोलर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड बैंड शेप ज्योमेट्री होती है, डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे। वाटर जैसी सिचुएशन होगी तो पोलर होगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैज अ प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, कैंसिल हो जाएगा तो ये पोलर नहीं होगा, व्हिच मींस बी इज द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज 3 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, which features are present in 1CO molecule। भाई वो 1CO molecule कह रहे हैं, तो 2 lone pairs of electrons आते हैं आपके पास। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का बाय द वे आपको स्ट्रक्चर समझाया हुआ है अगर आपको याद हो। तो आपके पास एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। पाई बॉन्ड 2 होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए। फिर वो कह रहे हैं कार्बन कैन एग्जिस्ट एज एलोट्रोप्स व्हिच इंक्लूड्स ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल 3 एलोट्रोप्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, तीनों में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ऑल 3 एलोट्रोप्स आर जॉइंट मॉलिक्यूलर, फ्लोरीन जॉइंट मॉलिक्यूलर नहीं होता, ये गलत हो गया। नॉट जॉइंट मॉलिक्यूलर, फ्लोरीन इज बेसिकली अ नैनो पार्टिकल, तो जॉइंट तो नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज डी। उसके बाद क्वेश्चन 34, वो कह रहे हैं द रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज शोन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज -20। देखें ये एंथैल्पी चेंज है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन व्हिच इज +20। इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लेकिन जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सोथर्मिक होगा, और जब एक्सोथर्मिक होगा तो +20 की बजाय वैल्यू क्या हो जाएगी? -20। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फिर वो कह रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर वो आपसे कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज +70। जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो 50 + 20 बिकम्स 70। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। Silicon forms a tetrachloride SiCl4, which statement are correct? In SiCl4, silicon is slide positive and each chlorine is slide negative. That's right actually. ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा। SiCl4 इज अ लिक्विड, दैट्स राइट, बिकॉज मैंने आपको खुद लिखवाया कि जब सिलिकॉन क्लोरीन से रिएक्शन करके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है, कलरलेस लिक्विड बनता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। SiCl4 reacts with water to give an acidic solution and a precipitate. Obviously, it is also right because silicon tetrachloride जब water के साथ reaction करता है, white precipitate of silicon dioxide बनाता है और misty fumes of HCl बनाता है, and HCl is an acidic solution. The right answer is A. Which statement about ammonia are correct? वो कह रहे हैं ammonia molecule has 3 bond pairs, यानी 3 single bonds होते हैं and 1 lone pair होता है, तो that's right. फिर वो कह रहे हैं when ammonia is bubbled into the water, the pH of the solution increases. Exactly, because ammonia is the only alkaline gas. When it is placed in water, it will turn to ammonium hydroxide, which is an alkali, and alkali की जो pH है वो 7 से ज्यादा होती है।
pH इंक्रीज हो जाएगी, ये भी सही है। अमोनिया gas can be made by warming ammonium sulfate with aqueous hydrochloric acid. That's wrong. When any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off. तो alkali होना चाहिए था, एग्जामिनर ने HCl लिखा है, which is wrong. तो right answer is B. 37. Following fractional distillation of crude oil, which processes can be used to produce propene from larger hydrocarbon molecule? तो जाहिर सी बात है, एक लार्जर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से प्रोपीन बनानी है तो क्रैकिंग यूज कर सकते हैं आप, राइट। रिडक्शन तो यूज ही नहीं होती, तो राइट आंसर इज डी। जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल की रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ब्रोमो इथेन अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ब्रोमो इथेन इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब इट अंडरगोस SN2 मैकेनिज्म। आगे चलते हैं। ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू मेक इथेनॉल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है बिल्कुल। फिर वो कह रहे हैं ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक अमोनिया टू मेक इथाइल अमाइन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हम बता देते हैं, ये है आपके पास ब्रोमो इथेन और ये रिएक्शन मैंने करवाया है आपको रजिस्टर में। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैंने इसको अमाइनो मीथेन लिखवाया, एग्जामिनर ने इथाइल अमाइन बोला, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर वो है ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक गैस टू मेक इथेन नाइट्राइल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, इथेन नाइट्राइल नहीं, प्रोपेन नाइट्राइल होगा, ये गलत हो गया, सही है। ये देखिए अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं KCN से, तो CH3 CH2 CN बनेगा, तो इसको कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, सही है। इथेन नाइट्राइल नहीं होगा, तो राइट आंसर इज बी। फिर वो कह रहे हैं 39 में, विच रिएजेंट्स व्हेन यूज्ड इन एक्सेस कैन कन्वर्ट Y इनटू C। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपने या तो एल्कली यूज की होगी, तो ये भी ठीक है, आपने कार्बोनेट आयंस यूज किए होंगे, ये भी ठीक है। और जाहिर सी बात है ये अल्कोहल है, अल्कोहल एक्चुअली और एसिड दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, राइट। तो बेटा अल्कोहल पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अल्कोहल Y में जो अल्कोहल है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने सोडियम का यूज नहीं किया। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंजेस हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद अल्कली, व्हिच इज व्हाई C is going to be the right answer. Question number 40. Each of the compound below is treated separately with an excess of sodium borohydride. So sodium borohydride is basically reducing agent. तो ये कीटोन कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में। सेम हेयर, सेकेंडरी अल्कोहल ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्किंग, बिकॉज पहले आप रिडक्शन कराएं, उसको प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करें, फिर वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन इज देन हीटेड विद एन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस है, वो कह रहे हैं आपसे which compounds give only one final product with the molecular formula this, यानी इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि सिर्फ एक एल्कीन देगा। एंड ऑब्वियसली वी नीड अ लॉट ऑफ वर्किंग, वी नीड अ स्पेस, स्पेस के बगैर ये काम हो नहीं सकेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। हम इसको यहाँ से एक सेपरेट पेज पे ले जाते हैं ताकि हमें लिखने में और उसको सॉल्व करने में आसानी हो, समझाने में। देखिए ये है ना आपके पास, ठीक है। अब देखो फर्स्ट के लिए देखो,
ये एक्चुअली कन्वर्ट हो गया आपके पास रिडक्शन के थ्रू सेकेंडरी अल्कोहल में और प्राइमरी अल्कोहल में। अच्छा, हमने आपको ये बताया था कि आप जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो डिहाइड्रेशन होगी। जब डिहाइड्रेशन होगी तो OH हटाओ, कार्बन पे प्लस चार्ज लगाओ, कार्बन पे ये प्लस चार्ज आ गया, कार्बन पे ये प्लस चार्ज आ गया। अब यहां से आपको दो प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। पहली प्रोडक्ट कि यार मैं इस कार्बन एटम से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर लूं, तो जब मैं इस कार्बन एटम से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करूंगा तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, राइट। और अगर मैं इस कार्बन एटम से करूंगा तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं इस कार्बन एटम के साथ करूंगा तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो भाई जरा इसको देख लो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 4 5 पे। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 4। तो पोजीशन दोनों की डिफरेंट हो गई, तो इसका मतलब ये डिफरेंट एल्कीन्स हैं। वो कह रहा है सेम एल्कीन। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया हमारा। सही है। अब सेकंड को देखिए। वैसे जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है ना तो राइट आंसर ना सी बनता है, क्योंकि सिर्फ 2 का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3 का कोई ऑप्शन नहीं है। 2 3 का ऑप्शन होता तो राइट आंसर इज सी। तो मैंने बता दिया कि आंसर कैसे आया, लेकिन मैं एक सेकंड को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ठीक है, जो मैंने क्लास में पढ़ा है उसको यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है। सो ये एग्जामिनर ने आपको दिया है स्ट्रक्चर। अच्छा, हम इसकी सबसे पहले तो रिडक्शन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कन्वर्ट होगा बेटा प्राइमरी अल्कोहल में, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब हम इसको ट्रीट करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, यानी हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो OH हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आइए। OH हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाइए अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम, राइट। सो आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। ये बन जाएगी आपके पास प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 4 5 के ऊपर है डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर मैं यहां से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दूं तो फिर क्या होगा? अच्छा, एक मिनट, यहां से भी तो हो सकती है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से होगा, स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड एज इट इज 1 2 3 4 5। तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो 1 2 4 5 है। तो सेम एल्कीन हो गई,
क्योंकि सेम डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है, एक ही एल्कीन हो गई ये दोनों, व्हिच इज व्हाई राइट आंसर इज सी, क्योंकि सेकंड भी करेक्ट होगा, थर्ड भी इसी तरह से करेक्ट होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।